اگر ہم اندر سے بدلاؤ نہیں لائیں گے تو باہر کیسے بدلاؤ لانے کے قابل ہو سکیں گے؟ اگر باہر بدلاؤ لانا ہے تو ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ملت کے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ اس کا عزم کر کے آج یہاں سے جانا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق روکا ہوا ہے اس حق کو وہ ادا کریں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جزاک اللہ۔ ہمارے درمیان اس سارے پروگراموں کے روح رواں کی حیثیت سے حضرت شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور دیگر اکابر اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی روایات کے امین، جو اگر ایک طرف جمعیت علماء کے تاریخی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف اس جماعت کے زرعی اور سنہرے کردار کو موجودہ انتہائی نازک وقت میں بڑی ہوش بندی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری مراد کون سی شخصیت سے ہے؟ وہ ایک باشعور صاحب بصیرت قائد کی حیثیت سے متعارف ہے، ملی اور بین الاقوامی اور ملکی حالات پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کے فیصلے دور اندیشی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں جمعیت علماء کے توسط سے انہوں نے اسلامیہ نے ہند کو آواز دی ہے، اور ہم سب نے لبیک کہتے ہوئے اپنے عزم کا اور ارادے کا اظہار کیا ہے۔ میری مراد آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم، جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے سچے جانشین حضرت شیخ الہند و شیخ الاسلام رحمہم اللہ کی روایات کے سچے امین و پاسدار حضرت اقدس مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت صدر محترم دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مجمع کے دل کی آواز ہیں، اسلامیہ نے ہند کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ مجمع ہی نہیں بلکہ اس اسٹیج کے توسط سے ساری دنیا کے مسلمان آپ کے خطاب کو سننے کے لیے منتظر ہیں۔ آپ تشریف لائیے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز حاضرین مجلس، جمعیت علماء ہند کے اس 34ویں اجلاس عام میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے فعال، متحرک اور ذمہ دار کارکنان اس مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طرح اور بہت سارے اکابر یہاں موجود ہیں، مولانا مفتی سلمان صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب اور مولانا انوار الرحمان صاحب، اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب دامت برکاتہم، اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے عبد الواحد انگارہ شاہ صاحب، یہاں ہمارے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے احباب اور دوست موجود ہیں، مختلف مذاہب کے ذمہ داران موجود ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ نے سن لی، کچھ ہیں جو رہ گئے۔ ہم لوگوں کو اس اجلاس کو 1 بجے ختم کرنا ہے اور صرف 20 منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ ہمارے 10-15 منٹ
माइक की खराबी की वजह से भी चले गए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने इस इजलास को अपने वक्त पे ख़त्म कर लें। तो मैं तकरीर करने के बजाय जो जमीयत उलमा का एलामिया है वो आपके सामने पेश करता हूँ। इसका उन्वान रखा है मुल्क व मिल्लत के नाम पैगाम। जमीयत उलमा हिंद मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत को पूरे मुल्क के लिए अजीम नुकसान तस्वुर करती है, जो कि वतन की सालमियत के लिए सख्त खतरा है और हमारी देरीना विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। तमाम मज़ाहिब के दोस्ताना और बिरादराना रिश्ते हमारे मुआशरे की काबिल फ़ख्र और पायदार खुसूसियात हैं। इन रिश्तों में दरार पैदा करना कौमी जुर्म है। तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद को चाहिए कि मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और तकसीम करने वाली यानी बांटने वाली ताकतों का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। हम उम्मत के नौजवानों और तलबा की तंजीमों को खबरदार करते हैं कि वह हमारे वतन के दाखिली और खारजी दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर हैं। उन्हें मायूस करने, भड़काने, गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें न तो मायूस होना चाहिए, न सब्र होश का दामन छोड़ना चाहिए। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं, वो न मुल्क के मफाद के एतबार से और न ही मजहब इस्लाम के रूह से हमारे ताउन और हिमायत की हकदार हैं। इसके बरखिलाफ वतन के लिए जानिसारी, वफादारी, हुब्बुल वतनी हमारा मुल्की और दीनी फरीजा है। हमारा दीन और हमारा मुल्क सबसे पहले है। हमारा यही नारा है, दीन और वतन पर जान देना, उसके नामूस के लिए मर मिटना। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। किसी भी महज़ब भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खुसूसियात में से बड़ी खुसूसियात तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और नजरिए पर चलने की आज़ादी है। उसे बचाने के लिए गांधी जी वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सड़ी और जिद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का जर्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। इसके मद्दे मुकाबिल कभी इस्लाम, कभी हिंदुत्व और कभी ईसाइयत के नाम पर जिस जारिहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है, वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी या नस्ली अदावत हरगिज नहीं है, बल्कि हमारा इख्तलाफ नजरिए पर मबनी है। हमारी नजर में भारत के सभी मजहबों के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सभी बराबर के शहरी हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक के हालिया ऐसे बयानात जिनसे बाहमी मेल जोल और कौमी यकजहती की हौसला अफजाई होती है, हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से थाम लेना चाहिए। लिहाजा उन्हें और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं, आइए आपसी भेदभाव को मिटाएं, बुग़्ज़ व इनाद, दुश्मनी को भूलकर अपने प्यारे वतन को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, मिसाली, पुरअमन और सुपर पावर मुल्क बनाएं। इस्लाम की वाज़ेह तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है। इस्लाम की वाज़ेह तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है, लेकिन इसके बावजूद
मुसलमानों में पसमानदा बिरादरियों का वजूद ज़मीनी हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि पसमानदा बिरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक मजहबी, अखलाकी और इंसानी नुक्ते नज़र से काबिल मजम्मत है। इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो ज्यादतियां जात पात के नाम पर हुई हैं उन पर हमें शर्मिंदगी है और उनको दूर करने का हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में समाजी, माशी, तालीमी हर जाविये से मसावात कायम करने की हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। पसमानदा बिरादरियों को तरक्की देने के लिए सरकार ने अभी हाल में जो बयान दिया है उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए जल्द अमली इक़दामात किए जाएंगे। माशी अबतरी, महंगाई और बेरोजगारी हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। गरीबी और बेरोजगारी की मौजूदा शरह को देखते हुए हमारी तरक्की के तमाम दावे झूठे और खोखले हैं। सुपर पावर बनने का हमारा ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि हम मुल्क के तमाम तबकात को रोजी रोटी मुहैया कराने के काबिल न हो जाएं। अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों की इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी को नज़रअंदाज करके मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ मुनसिफाना बर्ताव के लिए इस्लामी शरीयत के मुकर्रर करदा कोड को अमली तौर पर नाफिज करें। मीरास की तकसीम में औरतों को महरूम रखना, तलाक देने और नान नफ़क़ा के सिलसिले में इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी और आम तौर पर मुआशरे में उनके साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुद मुसलमानों को पूरे मुल्क में तहरीक चलाने और ज़रूरी इस्लाहात करने की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखलत की गुंजाइश न रहे। इस पैगाम के साथ मैं आखिरी जो हिस्सा जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आपको तवज्जो दिलाकर इस बज़्म को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी बहनों के हुकूक हम मीरास में जो उनके हक होते हैं वो हम अदा नहीं करते हैं। औरतों के साथ ज़्यादतियां करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, मैं हमेशा कहा करता हूं ये बात, अगर हम अंदर से बदलाव नहीं लाएंगे तो बाहर कैसे बदलाव लाने के काबिल हो सकेंगे। अगर बाहर बदलाव लाना है तो हमें अपने समाज में, अपने मुआशरे में, मिल्लत के अंदर बदलाव लाना होगा। इसका अज़्म करके आज यहां से जाना होगा। जिन्होंने अपनी बहनों का हक रोका हुआ है उस हक को वो अदा करेंगे। आप तैयार हैं इसके लिए? जज़ाकल्लाह।